Hi, it's a very good morning to all of you. So 10.1 exercise we did, and so today we will do exercise 10.2. So let's start. So see exercise 10.1, sorry 10.2. Question number 1. It is given from a point Q. The length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, आपको निकालना है रेडियस. तो बोल रखा है, इसका हिंदी मतलब है कि एक Q पॉइंट से एक सर्कल का टेंजेंट है जी 24 सेंटीमीटर. That means from a point Q, the length of the tangent of the circle is 24 centimeter, means the point Q is the external point. So this is the circle from point Q. The length of the tangent is, how much it is given? 24 centimeter. Good. And the distance of Q from the center is, and from this center O, the distance of the point Q from the center is 25 centimeter. You need to find the radius of the circle. This you need to find. So you name this point of contact as P कर लो, कोई दिक्कत ना. That means radius is OP. You need to find. OP you need to find. जो हमारा statement given है, तो in that given statement, in the given question, the statement is like that कि from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter. From a point Q, the length of the tangent is 24 centimeter, and the distance from the center to this point Q is 25 centimeter. As it is, we have written, and you need to find the radius of the circle. So this is the question. बाकी आपको पता है, by the theorem, radius drawn is perpendicular to the tangent, so it is a right angle. So in this right triangle OQP, like one question we did yesterday. So OQP, we can apply the Pythagoras theorem, and by Pythagoras theorem, OQ square equal to QP square plus OP square. Good. So this will implies OQ square is 25 square equal to QP square is 25 square plus OP square. तो this will implies 6 to 5, और यहाँ पे कितना था जी 576 है ना. OP square माइनस कर दोगे ये 6 to 5 से 576 इधर है 49 इक्वल टू OP स्क्वायर, तो इम्प्लाइज OP इक्वल टू 7. देयरफॉर रेडियस OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. सी दिस इज द पाइथागोरस ट्रिपलेट, यू नो ना, 25 24 7. तो इसमें कैलकुलेशन ये मिस्टेक भी हो सकता है, देख लेना एक बार. 24 and 24 576 या कितना भी है नहीं पता, बट आई नो कि 7 24 and 25 इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो रिमेंबर करना कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. जैसे 3 4 5, फिर कौन सा है जी 5 12 13, 5 5 12 13. दिस इज द 25 प्लस 1 44 और 169. देन हमारा क्या था अभी जो ये किए थे 24 25 7. तो ऐसा हमारा क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद कर लेना. तो ऐसे 25 24 देते ही पता लग गया कि OP 7 आएगा, बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 7 24 25 का. तो OP रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. गॉट इट ना. इजी क्वेश्चन है बहुत. अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 इन द फिगर 10.11. दैट मीन्स फॉर क्वेश्चन नंबर 2, फॉर क्वेश्चन नंबर 1 द फिगर वाज नॉट गिवन. यू हैव टू सी, ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट टू construct the figure from the statement. If you can construct the figure from the statement, then you can do the question. Be sure. In second question, no matter to make the diagram from your own. The diagram is given. See question number 2. See, question number 2 is given.
In figure 10.11, if TP and TQ are two tangents, ऐसे दे रखा TP and TQ, इधर से शुरू कर रखा है, ये TP है, ये TQ है. These are the two tangents to a circle with center O. सेंटर O है जी, ये है, दिस इज सेंटर O. उसके बाद बोला है सो दैट PO Q इक्वल टू 110 है जी. ये 110 डिग्री दे रखा हमारे को. यू नीड टू फाइंड PTQ. ओ ये एंगल निकालना है जी. निकाल देंगे. कैसे निकाल देंगे? हाँ जी, हमको पता है इट इज अ सेंटर, दैट मींस दिस इज अ रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड वी नो रेडियस is perpendicular on the tangent to the point of contact, so it will become 90 degree according to the theorem, according to the properties. ब्रैकेट में लिख देना, ये ब्रैकेट में प्रॉपर्टीज लिख देना, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट. ये 90 डिग्री जब आप सॉल्व करोगे ना कि एंगल OPT इक्वल टू 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिख लेना प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट. गॉट इट ना? Why OPT is 90 degree. Next OQT is 90 degree. क्यों है? सेम. OQT equal to 90 degree. Why? It is same cause, property of tangent. So in these quadrilateral, कौन सा in quadrilateral OQTP हमको पता है the sum of all the angles of the quadrilateral is 360. Good. 360. तो ये 110 है, ये 90 है, ये 90 है, तो कितने हो जाएंगे सारा मिला के? ये 90 मिलके 180, बाकी दो ये मिलके 180 होना चाहिए, ये 110 हो गया, तो ये 70 है. तो आप ये करते हैं ना, कैसे करोगे कि 110 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल, देखो ये 110 इधर लिख लिया, ये 90 इधर लिख लिया, ये 90 इधर लिख लिया, रह गया ये एंगल PTQ इक्वल टू 360 सारा मिलाकर, 1 2 3 4 मिलाकर. तो एंगल PTQ इक्वल टू 360 माइनस, ये सबको ऐड करके माइनस कर देना, आंसर 70 आ जाएगा, ये 70 आ जाएंगे. और ना ये 70 आ जाएंगे. दैट मीन्स हमारे को ये पता चला है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, यू नो, इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन हो जाता है आपको बोर्ड में, ये क्वेश्चन सिंपल है, इसको थोड़ा बदलाव करके देगा, वो मैं बता रहा हूँ कैसे. सी सप्लीमेंट्री एंगल्स, यू नो, सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स if the sum of the two angles is 180 degree, they are known as supplementary angles. So right now angle O and angle T are supplementary angles. Why? Because 110 और 70 मिलके 180, क्योंकि ये 90 मिलके तो 180 है. These are also supplementary angles. दो perpendicular, दो right angles से supplementary angles होना ही होना. Why? Because 90 plus 90 180. If the sum of the two angles is 180, then that is a supplementary angles. तो हमारा ये P and Q are supplementary angles and O and T are supplementary angles. Got it? तो ये आंसर हमारा ऐसे कर लेंगे. सपोज ये क्वेश्चन हमारे को ऐसे देता कि ये 120 डिग्री देता जी, 120 डिग्री देता. सपोज दिस सेंट्रल एंगल इज गिवन एज 120 डिग्री, तो ये कितना आंसर आता? ये 60 आता. सेम डायग्राम में ये 60 आता. Why? Because ये सम O and T are क्या? Supplementary angles. That means from an external point, if you draw two tangents, then the main central angle, the tangents will subtend with the help of radius at the center, and the angle between the tangents, they are supplementary. Got it ना? मैं क्या बता रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ, if you draw two tangents from an external point, then the main central angle made by the tangent with the help of radius at the center, and the angle between the two tangents at the external point, they both are supplementary angles. Got it ना? ये भी क्वेश्चन कभी आ सकता है, ऐसे कर देगा आपको कि prove that the angles made by the tangent with the radius at the center and the angle between the tangents at the external point are supplementary. That means ये दोनों एंगल का सम 180 दिखाना पड़ेगा. Got it ना? हाँ, तो इसी क्वेश्चन को ऐसा भी आ सकता है. Got it?
नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको कैसे करोगे आप, सिंपल कर लेना, जो आपको ये निकालना था ना, ये 110 दे रखा था, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन इट 120, 110 दे रखा था, ये 90 कैसे पता हमको, ये 90 कर देंगे, कॉज लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, ये भी 90 प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, फिर ये क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे, क्वाड्रिलेटरल है ना ये ओ क्यू टी पी, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, व्हाई, बिकॉज इट इज बाउंडेड बाय 4 साइड्स एंड इट इज अ क्लोज्ड फिगर, दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, गॉट इट ना, ये क्वाड्रिलेटरल क्लोज्ड नहीं है, क्लोज्ड भी होना चाहिए 4 साइड से बाउंडेड होना चाहिए, 1 2 3 4 साइड्स, इट इज बाउंडेड बाय 4 साइड्स एंड इट इज अ क्लोज्ड फिगर, दैट मींस क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ द एंगल्स विल बी 360। सो ये तीनों को ऐड करके 360 से माइनस कर दूंगा, 70 आ जाएंगे, कर लेना, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3 is given like that कि if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O, diagram is not given, you have to construct your diagram from the statement, how to make the diagram from the statement, ज्योमेट्री में वेरी इंपोर्टेंट हमको बता दिया था, बोला कि दो टेंजेंट है PA and PB एक एक्सटर्नल पॉइंट P से, ये सर्कल है जी, ये P है, ये PA बना दिया मैं, ये PB बना दिया, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P, दैट इज PA एंड PB एंड टू ए सर्कल विद द सेंटर O तक बना दिया, O तक बना दिया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये भी। आगे बोला they are inclined to each other at angle 80 degree, oh these are inclined at an angle of 80 degree, got it now, given that PA and PB are two tangents drawn from an external point P to a circle whose center is O and they are inclined at an angle 80 degree। स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, फिर से सुन लो, बोल रखा है कि PA एंड PB दो टेंजेंट है P पॉइंट से एक सर्कल पे बनाया गया है जिसका सेंटर O है, और ये दोनों एंगल इंक्लाइंड है 80 डिग्री पे, PA एंड PB दोनों टेंजेंट्स दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, गॉट इट। हमारे को निकालना है POA, ओ ये निकालना है, ये निकालना है POA, ओ पहला थ्योरम, पहला या दूसरा थ्योरम जो भी बोला था, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, दोनों का एंगल ऑफ सबटेंशन बराबर होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बराबर होता है, मिला था ना। तो इफ दिस इज 80 डिग्री, हाउ मच विल बी दिस मच, हाफ कितना होगा इसका, 40 होगा ना, ये भी 40 होगा, आपको बताया था उस दिन, बताया था ना कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेड बाय द टेंजेंट विद द लाइन ऑफ जॉइनिंग, दिस इज द लाइन ऑफ जॉइनिंग, दे आर इक्वल, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द टेंजेंट एट द सेंटर आर इक्वल, ये दोनों भी बराबर है। तो इफ दिस इज 40, दिस इज 90, वी नो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, सेकंड थ्योरम जो प्रूफ किए थे हम, प्रॉपर्टी बोल रखे थे ना उसको ब्रैकेट में, अभी ये 90 हुआ है बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो हमको ये एंगल निकालना है। तो बोलो एक ये तो 40 आ गया, ये 40 आ गया जी, ये कितना आ गया 90 आ गया, तो ये निकाल लो ना आप, टोटल मिला के 180 होता, टोटल मिला के 180 होता ना। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, यू नो, टू एंगल्स यू आर हैविंग, थर्ड यू कैन फाइंड हाउ, 90 प्लस 40 मिलके 130, तो 180 में से 130 को माइनस कर दो, ये 50 आ जाएगा, गॉट इट। नेक्स्ट फ्रॉम टुमारो वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 and 5, ये तीन क्वेश्चन एक बार कर लेना, और एग्जांपल सी 3 एग्जांपल्स ओनली यू हैव गॉट, ये एग्जांपल कर लेना, देन ओनली यू कैन feel easy while doing question number 4 to 13, they are a little, they need concept, so try these questions at home, okay, bye.